Hello, students. This is Professor Simple Shukla's private tutorials. Students, we have been taking so many lectures on halogen derivatives of alkanes and halogen derivatives of arenes. Now, we have reached the end of the topic, wherein we are now discussing how a halogen derivative of alkane, which is a trihaloalkane, which is a haloform, iodoform, how it is prepared. Basically, students, in your NCRT and in your state board textbooks, this subtopic, preparation of iodoform, which is also called iodoform test, it is in aldehydes, ketones, and carboxylic acids. But, students, since in this reaction an iodoform is formed, I am teaching it in halogen derivatives because iodoform is a haloform, and haloforms are trihalogen derivatives of methane. Haloforms are trihalogen derivatives of methane. Once again, I am repeating, haloforms are defined as trihalogen derivatives of methane. So let us see how we can prepare iodoform. Now students, in order to prepare iodoform, see what are the substances we need. Giving the heading first, let us see what we are doing. Preparation. We're doing a preparation. Preparation of iodoform. And children, this preparation of iodoform is also called iodoform test. It is iodoform test for which substances? ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद इस रिएक्शन में हम जो भी रिएजेंट्स यूज करेंगे वो सब्सटेंसेस जो इस रिएक्शन के बाद आयोडोफॉर्म प्रोड्यूस करते हैं उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं कि उनमें आयोडोफॉर्म टेस्ट देने की क्षमता है, कैपेसिटी है, प्रॉपर्टी है. अब वो कौन है? What are those substances? वो कौन से सब्सटेंस हैं जो आयोडोफॉर्म बना सकते हैं या आयोडोफॉर्म किस तरह किन किन से बनाया जा सकता है? The very first thing, students, very important, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ये जो आयोडोफॉर्म प्रेपरेशन है, ये कोई भी ऐसे ही कोई भी नहीं बना देता, पर इसे बनाने वाला या तो substance having methyl keto group, substance having methyl keto group,
substance having methyl keto group or substance or the substance which on oxidation or the substance which on oxidation produces a methyl keto ग्रुप. ऐसा सब्सटेंस, ऐसी चीज, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास या तो मिथाइल कीटो है या वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के बाद मिथाइल कीटो देता है. मिथाइल कीटो कैसा दिखता है? मिथाइल छतरी, कीटो सी डबल बॉन्ड ओ. और इस ग्रुप को बच्चों एसिटाइल ग्रुप भी कहते हैं. So the substances which are having a methyl keto group or the substances which on oxidation produce a methyl keto group, that is the Chatri CO group, that is the acetyl group, are said to give positive iodoform test. Are said to give positive iodoform. पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट का क्या मतलब है बच्चों? यही मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस आपको आयोडोफॉर्म दे देंगे, आयोडोफॉर्म प्रोड्यूस कर देंगे. और आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CHI3 ट्राई आयोडोमीथेन, also called iodoform. Triiodomethane, also called iodoform. Now एक सीक्वेंस बना लेते हैं कौन कौन है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है. एक ही प्राइमरी अल्कोहल है, ओनली वन प्राइमरी अल्कोहल, only one primary alcohol can give this test. और वो कौन सी अल्कोहल है? इथेनॉल. इथेनॉल जिसका और एक नाम है ग्रेन अल्कोहल, मिथाइल कार्बिनॉल, इथाइल अल्कोहल, और इसका ट्रेड नेम है अल्कोहल. ओनली, बड़ा सरप्राइजिंगली कई चीजें आ रही हैं यहाँ पर. ओनली one aldehyde can give this test. और कौन है वो? acetaldehyde, the only aldehyde which can give this test. Okay, what about secondary alcohol? Only alcan, 2-ol, which are secondary can give this test. क्यों लिखा हमने 2-ol secondary होता है? नहीं, 2-ol secondary नहीं होता, जरूरी नहीं है. जैसे देखिए यहाँ छोटा सा बना रहे हैं. सपोज हमने लिया CH3C, CH3OH, CH3, तो ये है 2-methyl propan 2-ol, 2-methyl propan 2-ol, 2-methyl propan 2-ol. लेकिन बच्चों ये टर्शरी है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. यहाँ कौन लिया जा सकता है? ओनली जिसके सेकंड कार्बन पे सेकेंडरी कार्बन पे ओ है. सेकेंडरी का सेकंड भी है और सेकेंडरी भी है. ओ वाह, बहुत मजेदार है ये. सेकंड है, 1 2 सेकंड है, और ये कार्बन 2 से अटैच है तो सेकेंडरी भी है. अब यहाँ भी ये सेकंड है, 1 2 3, लेकिन सेकंड वाला टर्शरी है जिसपे OH है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. तो सेकंड बट सेकेंडरी.
only those ketones which are alkane 2-on. सिर्फ यही कीटोन ये टेस्ट देंगे. कैसा दिखेगा इनका स्ट्रक्चर? CH3C डबल बॉन्ड OR. तो बस यही आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे. अब आप ध्यान से यहाँ पे ये वर्ड देखें तो यहाँ लिखा है वो जो ऑक्सीडेशन पे, बराबर है. अब अगर आप ध्यान दो, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड देता है, अल्केन 2-ऑल सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे कीटोन देता है. यानी इफ यू स्टार्ट द रिएक्शन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल तो पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है और वही अल्कोहल अल्डिहाइड बन जाता है. इसीलिए इथेनॉल ही ले सकते हैं और वो ऑक्सीडेशन पे इथेनॉल ही देगा. Since we know primary alcohol on oxidation gives aldehyde, and we can take only one primary alcohol, ethanol, and that will only on oxidation will give acetaldehyde. Similarly, secondary alcohol alkane 2-ol on oxidation will give alkane 2-on. तो ये इसी का आयोडोफॉर्म के टेस्ट के अंदर के ही स्टेप्स हैं. Right? How we can use this test? We can use it to distinguish between alcohols and a particular type of aldehyde. It is a distinguishing test. See how. Suppose I want to distinguish between ethanol and methanol. तो हम लूकस टेस्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि इथेनॉल भी प्राइमरी है, मिथेनॉल भी प्राइमरी है, दोनों लूकस टेस्ट वैसा ही देंगे. लेकिन हम आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि इथेनॉल प्राइमरी होने के बावजूद आयोडोफॉर्म देगा और मिथेनॉल प्राइमरी तो है लेकिन आयोडोफॉर्म नहीं देगा. तो इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल को बाकी पृथ्वी लोक के किसी भी प्राइमरी अल्कोहल से आयोडोफॉर्म टेस्ट द्वारा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सिमिलरली the only aldehyde which gives this test is acetaldehyde, and hence acetaldehyde can be distinguished from all other aldehydes using iodoform test. Similarly, alkane 2-ols can be distinguished from other type of secondary alcohol like alkane 3-ol. जैसे मेरे पास मान लेते हैं पेंटान 2-ऑल है, इधर बना रही हूं मैं पेंटान 2-ऑल, एंड हमारे पास है पेंटान 3-ऑल. So we can't use Victor-Meyer's test or Lucas test, but we can use iodoform test because alkane 2-ol will give iodoform, but alkane 3-ol will not give iodoform. Hence, pentan 2-ol and pentan 3-ol can be distinguished using iodoform test. Similarly, अगर ये कीटोन होता, ये H निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, so alkane 2-on can be distinguished from alkane 3-on using iodoform test. Okay, children. अब इसे erase कर देते हैं and let us see equations in iodoform test. What are the reactions in iodoform test? या iodoform किस तरह से बनता है? First कैटेगरी हमारा जो इथेनॉल था वो लेते हैं. आयोडोफॉर्म बनाने के लिए हमें चाहिए इथेनॉल. आयोडोफॉर्म बनाने के लिए बच्चों हमें चाहिए इथेनॉल, आयोडीन, NaOH, या हम ले सकते हैं इथेनॉल, आयोडीन, Na2CO3. अब यहाँ आयोडीन और NaOH फिक्स्ड है, आयोडीन और Na2CO3 फिक्स्ड है, बट इधर हम वो नाम ले सकते हैं जो पहले हमने देखे, इथेनॉल, इथेनॉल, अल्कैन 2-ऑल विच इज सेकेंडरी एंड अल्कैन 2-ओन. इतनी चीजें हम ले सकते हैं यहाँ. अब स्टेप 1, लेट अस सी व्हाट इज स्टेप 1. इन स्टेप्स को हम नाम, हेडिंग, ये जो यहाँ हेडिंग है इधर, ये हम बाद में देंगे थोड़ा सा, पहले हम देखते हैं क्या होता है. ठीक है. नाउ द स्टेप 1 इज
NaOH reacts with iodine to give NaI, NaOI and water, और Na2CO3, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, reacts with iodine to give NaI, NaOI and CO2. Udi Baba. Now children, here the important thing is this. ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और ये सोडियम हाइपो आयोडाइड है which is a good oxidizing agent. So this is the thing of importance both the places. इसलिए हमने पहले स्टेप को नाम दे दिया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइपो आयोडाइड TE. Now let us see what is step 2. Now in step 2 children, we will see the name later on, same way. नाम बाद में लिख देंगे, क्या होता है देखते हैं. So we take ethanol, step 2 only that is remaining, that will come into the picture. Ethanol reacts with NaOI. जैसा कि मैंने आपको बताया, सोडियम हाइपोआयोडाइड बच्चों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगा. और आपको पता है अल्कोहल अगर प्राइमरी है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो वो ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड देता है. तो ये इस तरह से आपको एल्डिहाइड मिल गया. अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं. सपोज मैंने यहाँ पर यही अल्कोहल इस तरह से फंक्शनल ग्रुप के एरिया को ओपन करके खोल के लिख दिया. अब आपको पता है यहाँ ऑक्सीडेशन होने वाला है बच्चों, सही है. अब अगर ऑक्सीडेशन होने वाला है तो आपको पता है ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अब यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करता है, ये फंक्शनल ग्रुप का H गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आया. जैसे डबल बॉन्ड आएगा 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए तो एक H निकल जाएगा. यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, एक और H निकल जाएगा. प्लस ये जो 2 H हैं ये कंबाइन करेंगे O के साथ और पानी बना देंगे और बच गया NaI. तो स्टेप 2 को हम हेडिंग दे देते हैं ऑक्सीडेशन. स्टेप 2 को हमने हेडिंग दे दिया बच्चों ऑक्सीडेशन. अब देखते हैं व्हाट इज स्टेप 3. स्टेप 3 स्टेप 3 का भी नामकरण बाद में कर देंगे, पहले रिएक्शन देखते हैं क्या है. ये इथेनॉल यहाँ मिल गया, इथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल ओके. ये जो इथेनॉल है इन दिस, ये अल्फा कार्बन है और ये 3 अल्फा H. ये 3 अल्फा H 3 NaOI लेते हैं इस तरह से, and the 3 alpha H are replaced by 3 iodine. और वो जो 3 H निकले यहाँ से वो 3 NaOH से कंबाइन करके दे देते हैं 3 NaOH. ये है आयोडल. आपको पता है ये इथेनॉल है. 3 alpha hydrogen from ethanol are replaced by 3 iodine. So I can call it triethyl.
iodoethanol. I can call it triiodoethanol. So our step 3 is iodination. Step 3 is iodination. Okay. Now last step. लास्ट स्टेप बच्चों हम अलग से लिख रहे हैं स्टेप 4, लेकिन एक्चुअली में ना स्टेप 4 इधर ही हो जाता है, ये इधर ही इसी से रिएक्ट करता है और स्टेप 4 हो जाता है, खाली हम लिख उसे अलग से रहे हैं समझने के लिए। पर ये रिएक्शन कभी भी इधर नहीं रुकता है, ये कभी इधर रुकेगा नहीं, नेवर स्टॉप्स हियर। इसी जगह हम क्लोरोफॉर्म बना रहे होते तो वो थर्ड स्टेप पे रुक जाता है और उसको जो क्लोरल होता है उसको ट्रीट करना पड़ता है हमको वापस से बेस से, लेकिन इधर ये इधर स्टॉप नहीं होता, ये यहाँ कंटिन्यू हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको नीट या जेई में क्वेश्चन में या सीईटी क्वेश्चन में अगर ये रिएजेंट देते हैं तो कभी भी रिएक्शन आयोडोफॉर्म पे ही स्टॉप होगा, आयोडल पे स्टॉप नहीं होगा। Okay, now the last step is, नाम दे देते हैं हम उसका आपको, हाइड्रोलिसिस। So NaOH combines with CI3COH, और ये देखिए ये देखिए ये आयोडोफॉर्म बन गया, देख रहे हैं? इसको लिख देते हैं इधर CHI3 प्लस क्या बच गया HCOONA, जो कि है सोडियम फॉर्मेट, और ये जिसका था इंतजार आयोडोफॉर्म। So this is iodoform test, यानी ethanol gives positive iodoform test because ethanol on reaction with these reagents produces iodoform. So we will say ethanol gives positive iodoform test. Ethanol gives positive iodoform test. Okay? Ethanol iodoform produce करता है। यहाँ इथेनॉल की जगह आप मिथेनॉल लेते तो ये सब कुछ नहीं होता, मतलब इथेनॉल एंड मिथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, अब इस टेस्ट की बच्चों और एक बड़ी अच्छी खासियत है, ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है ना, ये डबल बॉन्ड को अटैक नहीं करता, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अटैक नहीं करता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रप्चर नहीं करता। इसलिए अगर यहाँ कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो उस पर कोई असर नहीं होता। जैसे देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया नहीं, ये नहीं, और एक इससे बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट में यानी NaOH आयोडीन डालेंगे,
हीट करेंगे NaOI बनेगा, तो वो हमें देगा CH3 CO। इस डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा असर, और फिर हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा आयोडोफॉर्म। ये यहाँ पे इधर रप्चर होगा, और वो जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो बनेगा CHCOONA, वापस NaOI से रिएक्ट होगा। ओके, सो ये क्यों बताया, क्योंकि ज्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अटैक करेंगे। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक होता तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिएक्ट करता और एसिड दे देता, वैसे ही KMnO4 और K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते, या नाइट्रिक एसिड होता तो वो भी इसे ऑक्सीडाइज कर देता। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सोडियम हाइपोआयोडाइड, दिस डज नॉट अटैक द carbon-carbon double bond. So that's all for today. Love and blessings. Take care. पढ़ाई करते रहिए, जम के पढ़ाई करिए। Bye bye.